तब तक आप ये लीजिए कौन आया हमको तुम्हारी देर रात तक बैठक करी टारगेट में मीडिया कार्यशाला करी। अब आज कल 22 और 23 फिर का नाम है आखिरी को है लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्स प्रेसिडेंट संतोष सिंह सर बगैर मैं जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों आपके समय गया। हमारे वो क्या नाम है 56 हम लोग को दे भी दीजिएगा, 60 तो है 50 नहीं है। हम सब लोड कर देते हैं मैम आपके यहाँ सेम डे सारे लोड कर देते हैं। इसकी बात register right now yours. So you just fill up the form and please give it to us. have you already? No. Please fill up the form and we'll register you right now. Yeah, whose form is this? Yeah. Now you all can please go to the hall. अच्छा support. Please go to the hall. आपका लखनऊ में दोनों जगह उन्होंने कुछ नहीं वो दूसरी आपके बारे में अच्छी आते ही हाँ कोशिश करेंगे तो आपका शासन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आप अपना भाई साहब आप लोग जो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉरेन स्टूडेंट्स। अच्छा हमारे समय में भी बहुत थे। ये बोसी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा नंदिनी आप मॉरिशस हैं और जो है प्रोफेसर एस्पिरेशन सर हैं एलयू के ही आप संतोष जी। अब हमारा इंटरनेशनल राष्ट्रनायक नंदी तो है नहीं। हमारे देखिए दीदी तब तक आप हमारी बेटियां अभी 400 प्लस ऑपरेशन करती 60 प्लस हो गया। SR इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल भी है। आयुष का शहर है
Most welcome, sir. Most welcome, sir. Please come on dais. Noted academicians and experts of national and international repute, Professor Dr. C.N. Singh, Director Dr. Ramanohar Lohia, Institute of Medical Sciences, Lucknow. Professor Arvind Awasthi, Dean Arts, Pro Vice Chancellor, University of Lucknow. A writer, orator, par excellence, Professor Surya Prasad Dikshit. And leading the seminar in the capacity of chairperson, Principal Navyu Kanya Mahavidyalaya, Professor Manjula Upadhyay. Organizing committee is requested to put up the badges to the esteemed personalities on dais. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all in the Student International and National Education Policy 2020 being organized by Department of Education in association with Internal Quality Assurance Cell, Navi. ये तो सब अंग्रेजों का चल रहा है। Auspicious start. May Ma Saraswati shower her divine blessings and guide us, the dignitaries on dais and other invited guests to kindly do the honors and seek divine blessings. On behalf of Navyu Kanya Mahavidyalaya, with a token of gratitude, a plan, a short and a memento. And some please. Navyu Kanya Mahavidyalaya Parivar welcomes you, sir. Ma'am, some please. Ma'am, some please. Thank you. A big round of applause for gracing the event. A big round of Ma'am, please. Yes. Thank you. Yes. Ma'am, please. ऊपर चल जाओ। कैमरा रखा हुआ है। Yes. हमारा हाथ नहीं आ रहा। मैम सामने प्लीज। ओके।
सुधरने वाले मुद्दे भी आए। Just come up, please. Come, please. We are really privileged. Thank you all for blessing us today. We have a good number of esteemed invited guests gracing this occasion sitting in our store, and it's an honor welcoming them. I will request the members of the organizing committee. Dr. Praveen Mishra, Head Department of Statistics, Dr. Shakila Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow. And next guest who we would like to welcome is Dr. Rishabh Kantyayan. Navi Kanya Parivar welcomes you. Education system rooted in Indian ethos that contributes directly towards making compassion and ethical decision making. We are blessed to witness this Amrit Kaal phase while boldly embracing its essence. This international seminar will serve as a forum for exchange of knowledge, enable the stakeholders involved in coming up with the finest of derivations pertaining to Indian, setting the pitch for a developed India of 2047 as conceptualized by our honor. सभी को आज इस एकादशी के पावन दिवस पर नवयुग कन्या महाविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपने मंच को प्रणाम करना चाहूंगी। मंचस्थ हमारे आज की, क्योंकि गुरु से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं आज ये दृष्टता करूंगी क्योंकि मेरे गुरु जो हैं प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए मुख्य अतिथि के पहले मैं सबसे पहले प्रोफेसर अरविंद अवस्थी सर को प्रणाम करती हूँ और नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सर की बहुत ही बड़ी खासियत ये है कि वो चाहे जितना भी बिजी हो, वो अपनी क्लासेस रेगुलर लेते हैं। मैंने इतना रेगुलर क्लास लेते लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस समय की मैं पढ़ी हूँ, गिने चुने ही प्रोफेसर्स को देखा है, और इस वजह से आप हम सभी के हृदय में ही विशेष स्थान रखते हैं। आपकी स्टूडेंट डॉक्टर अनिमा अवस्थी भी यहाँ पर हैं, तो हम सभी की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन है। इसके बाद हमारे सबसे वरिष्ठ आज मुख्य वक्ता के रूप में पधारे प्रोफेसर एसपी दीक्षित जी, जो कि एक ज्ञान का समृद्ध कोश हैं। कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है और इस उम्र में भी 80 के ऊपर आपकी एज है, और आज आप अभी यहाँ आए हैं, उसके बाद आपको नेशनल जाना है, उसके बाद आपको फ्लाइट भी है आपकी आज ही, फिर भी आपने अपनी इतनी व्यस्तता से और एक ऊर्जा के साथ हमारे बीच आप आए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है महाविद्यालय परिवार में। अब प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि MLC पवन सिंह चौहान जी, जो बहुत ही सरल हृदय हैं, सहज हैं, और आप लोगों ने हमारे कहेंगे कि संकट काल में जो है आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपका महाविद्यालय परिवार में स्वागत अभिनंदन है। आप पहले भी महाविद्यालय में अपना आशीर्वचन प्रदान कर चुके हैं और आपकी कृपा दृष्टि इस महाविद्यालय पर बनी रहे, और हम जब आपको बुलाएं आप अधिकार के साथ आप ऐसे ही हमारे बीच पधारें। आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्री संतोष सिंह जी, जो हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो आप अध्यक्ष थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते, संगठन से भी आप हमारे वरिष्ठ हैं और वर्तमान में आप MLC हैं, तो आपका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको बधाई देती हूँ और साथ ही साथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विभिन्न दायित्वों का आप निर्वहन कर चुके हैं, संगठन को मजबूत कर चुके हैं,
अपनी पार्टी के, और अब आपको जो दायित्व मिला है आप उसका ऐसे ही निर्वहन बखूबी करेंगे और अच्छे से करेंगे और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे, क्योंकि मैं आपसे छोटी ही हूँ और भाई के रूप में आप आए, आपने मेरा मान रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर सीएन सिंह जी जो लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, आप हमारे पहली बात तो लखनऊ में ही आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और आज नवयुग महाविद्यालय में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपके विद्वत्पूर्ण वचनों से हम सभी अनुग्रहित होंगे। आपका इस महाविद्यालय परिवार के सभी जनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आपने भी बहुत अल्प समय में हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करेंगे, और आपने समय दिया अपना। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े संस्थान के डायरेक्टर होने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, एक हमारे मानव विकास सूचकांक में भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा, लखनऊ वासियों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। कोविड के काल में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लोहिया जैसे संस्थानों पर उठे, पर मुझे लगता है कि आप इस संस्थान को एक बहुत ही ऊंचाई देंगे, एक गति प्रदान करेंगे, और हम सभी आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे बीच कुछ विदेशी छात्र भी जुड़े हैं। मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच नंदिनी है और वो बोसी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो विद्यार्थी परिषद का ही एक विदेशी विद्यार्थियों के लिए एक संगठन, एक पार्ट आप कह सकते हैं, बोसी है, तो आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण मिश्र जी हैं शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिम जिले के जिला प्रमुख भी हैं। हमारे बीच जिला संगठन मंत्री ऋषभ कात्यायन जी हैं पश्चिम जिले के, जहां पर ये सेमिनार हो रहा है। हमारे बीच डॉक्टर इंद्रेश शुक्ल जी हैं जो DSMB में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हमारे हमेशा ही पालनहार बनकर आते हैं विषम परिस्थितियों में। आपका महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सभी का। और मेरे साथ एक पिलर की तरह हमेशा खड़े रहने, हमारे और संतोष जी के साथ के रहे, और मेरे सहपाठी के साथ आज मेरा हमेशा साथ देने के लिए, और वैसे तो अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, पर पतिदेव अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हेमंत कुमार उपाध्याय जी एडवोकेट आप हमारे बीच हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं जहाँ से आई हूँ AP सेन मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज से डॉक्टर निधि सिद्धार्थ, जिन्होंने मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, और प्रोफेसर निधि सिद्धार्थ और प्रोफेसर माधुरी यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। महिलाओं की आदत होती है जब भी उनके मैके से कोई आता है तो वो प्रफुल्लित हो जाती हैं, तो आप आई तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से मेरा मनोबल बढ़ा। महाविद्यालय परिवार की सभी शिक्षिकाओं का, सभी छात्राओं का, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये जो टॉपिक था, वैसे तो इस पर प्रकाश इस सेमिनार की कन्वीनर डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह जी डालेगी, पर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे आज के जो युवा हैं, साथ ही साथ हमारी उम्र के भी जो लोग हैं, वो लोग अपनी परंपराओं से शायद दूर जाते रहे, और हम ये कहते हैं कि मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ा और उसकी वजह से हमारी संस्कृति भी बिगड़ी, पर ये हमारी भी जिम्मेदारी रही कि जब हम अमृत महोत्सव मना चुके और इतने सालों के में क्यों नहीं ये परिवर्तन हुआ कि हम अपनी जो शिक्षा नीति थी उसको इस ओर उन्मुखी बनाते कि वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चलती, और हम भी और हमारे छात्र छात्राएं भी ये जानते कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स रहे हैं, क्या हमारा साहित्य रहा है, क्योंकि जब तक आप में आत्म गौरव नहीं होता तब तक आप राष्ट्र गौरव की बात नहीं कर सकते। स्व को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, और जीवन जीने के लिए भी, और क्योंकि आपको अपनी नजरों में पहले तो ऊंचा होना, स्वाभिमान होना जरूरी है, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि
कि आप वैश्विक पटल पर अपने आप को स्थापित कर सकें, अपनी गरिमा को फिर से वापस पा सकें। जब आप पराधीन थे उसके पहले बहुत ही ग्लोरियस पास्ट हमारा रहा है और उस ग्लोरियस पास्ट को हम फिर से अटेन कर सकें। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो जिस देश का व्यापार जो है वो 30% के करीब था, वैश्विक व्यापार में उसका योगदान, ऐसा क्या हुआ? इन चीजों का पुनर्वलोकन करने की जरूरत है कि आजादी के समय 1947 में वो खाली 1-2% ही रह गया। तो क्या कारण है, इसको हमें जानना जरूरी है। और ये 2 दिन की जो संगोष्ठी है इन्हीं पर विचार मंथन करेगी। ये हाइब्रिड मोड में संगोष्ठी है, करीब 10 सत्र हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पूरे देश से विदेश से जुड़ेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हमारे बीच होंगे, ऑफलाइन जुड़ेंगे इन 2 दिवसीय संगोष्ठी में। मैं आप सभी का और मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए जो है इस सेमिनार की जो इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, कन्वेनर हैं, को कन्वेनर हैं डॉक्टर विनीता सिंह जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। छोटों को जो शुभाशीष देती हूँ और बड़े से आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। नोट ऑफ द सेमिनार। मंच पर विराजमान हमारे आज के सभी विशिष्ट और मुख्य अतिथिगणों को मैं सादर प्रणाम करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं ऐश्वर्या सिंह, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका के रूप में एक संक्षिप्त प्रस्तावना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई, जिसका संकल्प शिक्षा को दिव्य ज्ञान की कोटि तक ले जाना है। भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में ज्ञान, बुद्धि और सत्य की खोज को सदैव ही सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया है। इन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित कर शिक्षा का कार्य व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित करना अर्थात अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाना है। इस तथ्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यक्त किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसमें अभी तक लगभग 800 प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, जिसमें 400 से ज्यादा ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगे और 400 से ज्यादा प्रतिभागियों की भौतिक उपस्थिति यहाँ पर रहेगी, जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। इस संगोष्ठी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा कि इस शिक्षा नीति को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए इस तरह कैसे लागू किया जाए कि सभी पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों के लिए यह समान रूप से सुलभ हो। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से इस विषय पर भी चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। इस संगोष्ठी के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि बौद्धिक चर्चा के बाद कुछ ऐसे विचार सामने आए जिसके माध्यम से हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति से छात्रों में उनकी मौलिक जिम्मेदारियां और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते परिवेश को विकसित किया जा सके, नागरिकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा किया जा सके। यह नीति निश्चित ही हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सबसे सामान्य और महान सदस्य के रूप में पुनः स्थापित करने में मदद करेगी। 2 दिन चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं थोड़ा सा आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहूंगी कि 2 दिवस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो उद्घाटन सत्र के बाद हमारा पहला जो प्लेनरी सेशन होगा, इसमें हमारे 5 मुख्य वक्ता होंगे, जिसमें 4 वक्ता ऑफलाइन यहाँ पर आपके सामने उनकी भौतिक उपस्थिति होगी और हमारे एक वक्ता जो प्रोफेसर सत्यनारायण जी, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोनॉमी एंड सेल बायोलॉजी, कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूएसए से वो ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन आप सब लोग देख पाएंगे। उसके बाद हमारे 5 ऑफलाइन और 5 में 3 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें लगभग हमारे देश के जो प्रमुख विश्वविद्यालय है, लगभग सभी जगहों से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर है। ठीक है। और इसके बाद कल जो दूसरा दिन होगा, एक और प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें एक और हमारे मुख्य वक्ता
कोलंबस से जुड़ेंगे प्रोफेसर शिव कुमार चतुर्वेदी जी, और उसके बाद फिर वापस 2 टेक्निकल जो सेशन होंगे जिसमें 3 ऑफलाइन और 2 ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे। इन 2 दिन तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करें, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। Pradesh Legislative Council from Sitapur since 2022. Found his motto, Shiksha, Sanskar और रोजगार. He heads the SR group of institution that facilitates the cause of empowered India with youth at the driving seat. We welcome you, sir, to address the gathering. होता क्या है, जब समय भागता है ना पकड़ नहीं कर पाते, तो लेट पकड़ लेते तो और लेट पड़े। तो हमको कहीं मैंने टाइम पे रखा था क्या वैसे, तो वो भी बरकरार पे माफी चाहता हूँ, हमको पहले नहीं बोला चाहिए, हकीकत में बाद में बोलना चाहिए, लेकिन हम आएंगे आपके साथ बैठेंगे और पूरा 1-2 घंटा बतियाएंगे बैठ के, ये बात से वादा करके जा रहा हूँ। तो आज इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष माननीय हमारे दादा एस.पी. दीक्षित जी हमारे विभाग में रहे हैं, और हमको लगता है कि कवि और साहित्यिक मंचों पर हम लोग लगभग मेंशन मिलते रहते हैं, ऐसे दादा को प्रणाम करता हूँ। हमारे संतोष भाई बहुत पुराने मित्र भी हैं और बहुत शानदार इंसान है, बहुत ही समाज सेवी में से सेक्शन को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सीएम सिंह अभी RML के 15 दिन पहले, एक पखवाड़ा पहले भी आप उसके डायरेक्टर बने, लेकिन पूरी रूपरेखा प्रणाली कैसे सुधारना है उसकी धमक पूरे प्रदेश में दिख रही है। इस बार रास्ता को बहुत धन्यवाद और शाबाश देता हूं। भाई हमारे अर्जुन अवस्थी जी, हमारी प्रिंसिपल साहिबा, इंद्रेश जी, विनीता जी, ऐश्वर्या जी, हमारे प्रेस मीडिया, हमारे बच्चे, प्रोफेसर, टीचर्स एंड समस्त स्टाफ को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हकीकत में आज ये जो इंडियन नॉलेज एडिशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस पर हम लोग बोलने के लिए आए हुए हैं। मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, जो नई शिक्षा नीति अभी लागू की गई है, ये आपको वाकई 5 साल 10 साल बाद अंतर दिखाई पड़ेगा। ये शिक्षा रोजगार पर, ये शिक्षा हम स्वावलंबी कैसे करें इसके लिए। इसके पहले जैसे भी प्रिंसिपल साहब बता ही रहे थे, मैकेनिक की पद्धति में हम लोग सिर्फ क्लर्क बनाए जाते थे, फिर कैसे पढ़ लिख करके अपने हिसाब से आपको मेंटेन रखते हैं। अब जिंदगी कैसे जिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और इस पर चर्चा हो रही है। हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने, इस पर चर्चा हो रही है। तो ट्रेडिशनल हमारा हुआ करता था, वो ट्रेडिशनल अब सीधा सीधा बनता है कि आप लोग घर में अपने जब भोजन बनाते हैं तो हम भाई सीधा हम लोग क्या करते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी ये 4 बनाते हैं, साथ में अचार क्यों रखते हैं, चटनी क्यों बनाते हैं। चटनी अचार को भोजन नहीं बना सकते, लेकिन चटनी अचार के सारे भोजन खाया जा सकता, उसको हम लोग एक जायका देते हैं। इसी तरह हमारे ट्रेडिशनल और आजकल के परिवेश में हमारा जो IT सेक्टर प्रमुख बना रहे हैं, ये IT सेक्टर AI इतनी जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो इस तरह हमारी स्मार्ट एजुकेशन कैसे किया जाए, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उसको प्ले ग्रुप से लेकर के और PG तक के बच्चों को रोज सामने करना पड़ता है, बड़ा आनंद आता है आपको। बस सच बताएं, प्ले ग्रुप का क्लास 1 के बच्चे के मॉनिटर्स हमारे यहाँ 16,000 बच्चे हैं, जो मॉनिटर्स मीटिंग करता है, मतलब मॉनिटर 300 लोग बैठते हैं, सिर्फ मॉनिटर बैठते 300 लोग बैठते हैं। उन एक क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 3 के प्ले ग्रुप से बच्चों बात करता हूँ, भाई बाबा क्या क्या होना चाहिए, और ताजुब करेंगे उनकी अपडेशन और ऑब्जर्वेशन गजब की होती। वो टीचर बताते हैं कि सर वो टीचर ने पढ़ा रहे थे तो हम पीछे से ऐसे शरारतें करते हैं और पीछे शरारतें करते थे, टीचर को पकड़ नहीं पाते। ये स्मार्टनेस है क्लास 1 के बच्चों की। तो ये इतना हमारे बच्चे स्मार्ट, ये हमारा युग है, तो हम लोगों को उसी का स्मार्ट होना पड़ेगा। ये जो हमारा शिक्षा नीति जो आई हुई है, ये उसी को कैसे कैश किया जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए, उस पर कैसे। संडे को मेरी तरफ से सारी बच्चियों पर और यहाँ के प्रोफेसर है सबको चंद्रिका देवी के बड़े दर्शन कराएंगे, और उसके बाद एग्जाम आप दर्शन करिए आपको। तो हम सबको धन्यवाद देता हूँ, हमें करेंगे, लेकिन आप लोग बड़े जोर से आपने इसको किया है, अब मैं माफी चाहता हूँ, को अर्जन जाना पड़ रहा है, और मैं हमको आभार जरूर बैठते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा पीछे करेंगे।
समारोह के विशिष्ट समागत प्रोफेसर डॉक्टर सिंह जी, प्रोफेसर अवस्थी जी, श्री चौहान सिंह जी, श्री अंजुला सिंह जी, संतोष सिंह जी और यहाँ पर पधारे हुए मेहमान, दूर दूर से पधारे हुए आप सब देवियों सज्जन, एक बड़े ही उपयोगी विषय पर आपने मूर्ति आयोजित की है। शिक्षा जीवन की पहली आवश्यकता है और भारत जैसे देश की तो यह विभूति रही है। हमें बहुत अरसे से विश्व गुरु कहा जाता रहा है और ये माना जाता रहा है कि देश विदेश के सभी लोगों को भारत जाकर जीवन की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सौसम चरित्र शिक्षण प्रसिद्ध ज्ञान सर्वमात्रा। पर विश्व गुरु होने के बावजूद विडंबना के बाद लगभग 1000 वर्षों की गुलामी में जहाँ हमारा सर्वांगीण अधोपतन हुआ, वही शिक्षा व्यवस्था भी नष्ट कर दी। शिक्षा का मूल है जो हमारे यहाँ वेदों में कहा गया था, बड़ा संक्षिप्त सूत्र, मनुष्य बनो, मानवता की शिक्षा देना, आचार की, विचार की, संस्कार की, व्यवहार की, यही सर्वांगीण शिक्षा है। और इसके साथ साथ जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ना, समाज में उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना। लेकिन ये सारे उद्देश्य विशेष धार्मिक सांप्रदायिक दुरुद्देश्यों के कारण अस्त व्यस्त हो गए। उसका दोष केवल वैज्ञानिक को ही नहीं है, बहुत पहले से जो हमारे गुरुकुल प्रणाली प्रचलित तपोवन की शिक्षा पद्धति, उसको मदरसों ने नष्ट किया, मुगल शासन का, और आधुनिक शिक्षा को लॉर्ड मैकाले को वक्तव्य जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने दिया था, सब प्रकाशित हो गया है। उसने समझाया भारत देश जो तो गरीब है, लेकिन मैंने भारत का कोना कोना देखा है, हर क्षेत्र में जाकर वहां की जनजीवन को पढ़ा है और मैंने ये पाया है कि ये देश गरीबी के बावजूद स्वाभिमानी पर किसी से भीख नहीं मांगता है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण किसी से पराभव नहीं स्वीकार करता। उसको लंबे अरसे तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। गुलाम रखने के लिए जरूरी है मानसिक दासता का प्रचार प्रसार करना और उसके लिए शिक्षा नीति में मूल रूप से रद्दोबदल करना। उसकी बात से सहमत होकर प्रशासन ने उसको पूरी छूट दी और तब उसने एक नई तरह की शिक्षा प्रणाली पैदा की जिसमें काले अंग्रेज उत्पन्न हुए और वे पूरी तरह से यूरोपीय सभ्यता में रंग गए, अपनी पुरातन संस्कृति को हे दृष्टि से देखने लग गए, उसे परंपरा कहकर और परंपरा को रूढ़ी कहकर उसका विरोध करने लग गए और परिणाम स्वरूप वो सारी शिक्षा बाबुओं की शिक्षा बन कर जिसमें मौलिक चिंतन को बढ़ावा नहीं दिया गया। उनके दिमाग में ये इंजेक्ट किया गया कि सच्ची सबसे सभ्यता की है, उन्होंने ही हमें ज्ञान विज्ञान दिया है और इसलिए उसका अनुकरण करके ही हम प्रगति कर सकते हैं। ये मानसिकता जो पैदा हुई धीरे धीरे पूरे भारत में संक्रमण की तरफ फैल गई और उसी का परिणाम हमारा सर्वांगीण अध्यापन हो गया। शिक्षा में सुधार लाने के लिए समय समय पर बहुत तरह के आयोग गठित हुए, देशमुख आचार्य नरेंद्र देवता के बड़ी बड़ी रिपोर्टें उन्होंने दी, लेकिन सत्यनिष्ठा के साथ उनका अनुपालन अलमारियों में बदल बनी रह गई। बार बार परिवर्तन हुए, आप स्वयं उसके साक्षी हैं। स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर पर बहुत तरह की परीक्षा नीतियां बदली, पाठ्यक्रम की नीतियां बदली, लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य था, भारतीय विद्या का मूल उद्देश्य है विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो उनको मुक्त करती है संकीर्णताओं से, मुक्त करती है अमानवीय मनोवृत्तियों से, मुक्त करती है दुर्गम भौतिक भोग से और जो ज्ञान के चक्षु खोलती है, जो हमें चिन्मय सत्य प्रदान करती है और सही अर्थों में जो हमें मनुष्य बनाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपा 2020 का गठन किया। इधर सरकार का ध्यान उसकी ओर गया और यह महसूस हुआ कि जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे, पेड़ के पत्तों को सींचते रहेंगे, तब तक पेड़ हरा भरा नहीं होगा। मूल में जाने की आवश्यकता है, यानी विद्यार्थी का व्यक्तित्व निर्माण जब हो रहा हो जिस स्तर पर,
उस स्तर पर उसे मनुष्य बनाने, भारतीय बनाने, राष्ट्रीय बनाने और सही अर्थों में एक सार्थक जीवन जीने वाला व्यक्ति बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत तरह के सुझाव हुए, बड़े व्यापक स्तर पर शिक्षा दी गई। लगभग 500 सर्वोच्चियां पूरे देश में हुई, लगभग 75,000 लोगों से संपर्क किया गया, उन सबकी राय एकत्र की गई और तब शिक्षाविदों के सहयोग से ये नीति प्राप्त किया। जितनी सक्रियता शुरू से होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यवश परिस्थिति वैसी अभी नहीं हो पाई। जिस तीव्रता के साथ इसको लागू करना चाहिए था, देखते देखते लगभग 4 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी इधर शासन का ध्यान वरीयता के लिए प्राथमिकता पूर्वक इस दिशा में गया। इस नई शिक्षा नीति में मूल सूत्र 5 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। पहली बात तो यह है व्यक्तित्व का सही विकास, यानी मूल्यवादी शिक्षा। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन के बिना हमारी सारी शिक्षा निरंतर। बहुत पहले राष्ट्रकवि बंकिमचंद्र गुप्त ने अपने भारत भारती नामक प्रसिद्ध काव्य में भारत के अतीत का गुणगान करते हुए कहा था, संसार को पहले नबी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, ज्ञान की, विज्ञान। ऐसा नहीं कि ज्ञान और विज्ञान हमारे नहीं था, ऐसा नहीं कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में और कुछ यंत्रों के माध्यम से ही होता है। विज्ञान के रास्ते है विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान जहां समाप्त हो जाता है, उसके बाद अन्वेषण और प्रयोग की जो परंपरा चलती है, निरंतर परिवर्तन परिवर्तन करने की जो परंपरा चलती है, उसी को विज्ञान कहते हैं। इस शिक्षा नीति में व्यवहारिक स्तर पर सारी समस्याओं पर विचार विद्यार्थी की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी की पहली आवश्यकता है रोजगार। आज आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी कुछ भौतिक चाकरी से प्रभावित होकर बड़े बड़े पैकेज के चक्कर में पड़ गई, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिरफ्त में आ गई है, विदेशी शिक्षा की गिरफ्त में आ गई, जिसका उपाय होता है बाहर भाग जाता है। उसको लगता है कि कैरियर वहीं जाने से बन सकता है। यहाँ रहते हुए भी किस प्रकार रोजगारों का सृजन किया जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, जो स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य था। और भारतीय परिवेश में अपना विकास करते हुए कैसे राष्ट्र का विकास किया जा सकता है, इस उद्देश्य से एक नई रोजगार नीति की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया गया है, जितने अनुशासन है, जितने विषय हैं, क्या उसमें तलाश करें, क्या कहाँ पर है, उसकी उपलब्धता किस क्षेत्र में प्राप्त की जा सकती। ब्रिटिश शिक्षा की एक सीमा यह थी, वो सैद्धांतिकी पर ज्यादा थ्योरी ज्यादा पढ़ाती, उसका प्रैक्टिकल पक्ष कुछ उपेक्षित रह जाता था। इसलिए हमें किताबी ज्ञान तो मिल जाता था किसी तरह से राजस्व शैली से, लेकिन उसमें नया उन्मेष नहीं आ पाता। प्रयोग करते हुए नए परिवर्तन, नए आविष्कार हम नहीं कर पा रहे थे। उसी का तो परिणाम ये हुआ, आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों में पूरे विश्वविद्यालयों की जो रेटिंग की गई है, कभी 200 की सूची जारी हुई, कभी 300 विश्वविद्यालयों की सूची जारी। दुर्भाग्य से भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं। हम और किसी क्षेत्र में पिछड़ जाए तो उतना पश्चाताप या ज्ञान नहीं होती। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाए, जो विश्वगुरु कहलाता रहा, वो सबसे पीछे पीढ़ी में आ जाए, इससे बड़ी अपमान की और दूसरी स्थिति नहीं हो सकती है। तो इस एहसास को सामने रखते हुए पहले मूल्यवादी शिक्षा, दूसरे रोजगार परक शिक्षा और तीसरे वर्तमान संदर्भों में शिक्षा की एक और सार्थकता है, वो है राष्ट्रीय भावनात्मक एकता। इस देश में अनेक प्रकार के भेद प्रभेद, संस्कृत बहुराष्ट्र है, भाषा बहुराष्ट्र है, हर क्षेत्र की अपनी अलग विशेषताएं, लेकिन वो विशेषताएं कभी कभी संकीर्णताओं में बदल जाती है, दुराग्रहवश सीमित दायरे में रहते हुए। तो किस तरह से हम सही अर्थों में एक भारतवासी बने और इंडिया नेटिव भारत वाली जो रूढ़ी बन गई थी, उससे मुक्त हो सके, सिर उठाकर सम्मानपूर्वक जी सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह 72 शिक्षा नीति लागू। इसमें कुछ परिवर्तन तो किए गए हैं, पाठ्यक्रम जैसे तक 4 वर्षों को होगा, उसी के साथ एमए की पढ़ाई होगी, एमए के साथ शोध की पढ़ाई होगी। अब तक हम अलग अलग संकायों में बंधे हुए थे। जो मेडिकल फैकल्टी में पढ़ रहा है वो आर्ट्स संकाय का, कला संकाय का कोई विषय नहीं पढ़ सकता है। उसके भीतर अभिरुचि है संगीत की, साहित्य की,
ज्ञान विज्ञान की, लेकिन उसी के साथ जुड़े हुए तेली के बैल की तरह एक सीधी दुनिया में घूमते रहने को पकड़, इससे व्यक्तित्व का विकास करने का एक मौका है। अब ये छूट दी गई है, आप उसे खंडों में कर सकते हैं, असुविधाएं के बीच में अंतराल दे सकते हैं, किसी दूसरे फैकल्टी के किसी दूसरे विषय को भी ऐच्छिक रूप में ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह अपनी अभिरुचि के अनुसार और साथ ही अपनी जीविका के अनुरूप अपने अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। शोध को इसमें विशेष वरीयता दी गई क्योंकि उच्चतर शिक्षा का मूल उद्देश्य है शोध का। इससे बड़ी और दूसरी उपलब्धि नहीं होती। ज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या जोड़ा है, अपनी ओर से क्या विकास किया। हर देश काल की अपनी अलग आवश्यकताएं होती हैं। किसी भी एक परंपरा का अनुकरण करने से ज्ञान का विकास हो जाता है। इधर शोध का कार्य बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब शोध का प्रतिशोध जैसे ले रहे हैं। किसी किसी विषयों पर टेबल वर्क जिसे कहते हैं, बस किसी तरह से 400-500 पेज का पोथा बना दिया जाए और फिर उसको उपाधि प्राप्त हो जाए। वो अलंकरण के रूप में तो काम करती है, लेकिन उस उपाधि का दैनिक जीवन में कोई बृहत्तर उद्योग नहीं करेगा। अगर पूछा जाए कि आज ये शोध न किए होते तो भारत की क्या हानि होती, तो शायद उसका उत्तर हम नहीं दे पाते। अब उस पर विशेष प्रकार के कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ अभिप्रेरणा ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी जोड़े गए हैं ताकि हम सार्थक, सही, मौलिक और उपयोगी कार्य कर सकें और शोध की प्रबोधन कर सकें। हमारे यहाँ जीवन मूल्यों के लिए विशेष रूप से बहुत जोर दिया गया। बहुत पहले यह तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश नाम की एक व्यवस्था दी गई। किस तरह से पंचकोश के माध्यम से जीवन का सर्वांगीण विकास किया जा सकता और उसी में नई नई विद्याएं जोड़ी गई थी, जिनमें दर्शन था, रहस्य चेतना थी, सामाजिकी थी, जिसके भीतर योग था, जिसके भीतर भाषा ज्ञान था। इन सारे क्षेत्रों में हमारी अग्रणी भूमिका थी। आज यूरोप और अमेरिका जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं, वे इस बात का गर्व और मिथ्या गर्व प्रकट कर रहे हैं कि संसार की सारी भौतिक खोजें हमारी ही की हुई। गैलीलियो के बहुत पहले हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत पहले 12 महीने का शोध कार्य हुआ था। गणित की विद्या यही से आरंभ हुई है। शून्य का आविष्कार हमें ने किया था, दशमलव का आविष्कार हमें ने किया था। वो वैदिक गणित के रूप में एक विद्या के रूप में अपने से प्रतिष्ठित हो गई। आवश्यकता है इन महर्षियों को पहचाने, आवश्यकता है उनके सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रसारित करें और उसको अप टू डेट बनावे, अधिकाधिक अधुनातन बनाते हुए ताकि उनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाए। इसी तरह से दर्शन के क्षेत्र में भारत में जो शब्द दर्शन चले, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसमें सांख्य भी है, उसमें योग भी है, उसमें वेदांत भी है, न्याय भी है, वैशेषिक भी है, मीमांसा भी है। इन महर्षियों ने जो चिंतन किया है, जो तर्कशास्त्र दिया है, फिलॉसफी के साथ जो लॉजिक दी है, आज भी उन सूत्रों पर काट नहीं दे सकती है, उस ऊंचाई तक लोग नहीं पहुंच सकते। भाषा के क्षेत्र में देश बहुत अग्रणी रहा, चाहे यास को ले, चाहे कात्यायन को ले, चाहे पतंजलि को ले, चाहे पाणिनि को ले। पाणिनि ने इतने विराट रचना संसार को संस्कृत वाङ्मय, जो विश्व का सबसे प्राचीन वाङ्मय, सबसे समृद्ध वाङ्मय रहा, उस सारे भाषा विज्ञान को 14 सूत्रों के भीतर बांध दिया अपने ऐसे अंतर्गत। ये जो कमाल, ये जो चमत्कार उन्होंने दिखाया, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। काव्यशास्त्र के हिस्से में देश बहुत अग्रणी रहा। साहित्य, उसकी विभिन्न विधाएं, उनकी रचना प्रक्रिया क्या है, उनके हेतु क्या है, उनका उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, उनकी रचना पद्धति और आस्वादन प्रणाली क्या है, तो समीक्षा और भाष्य प्रणाली। भारत में जैसे जैसे भाष्य लिखे गए, अकेले वेदांत के जो भाष्य हुए हैं, उतना समय नहीं है, मैं सबके नाम नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन समझदार में इशारा बहुत काफी होता है और आप सब समझदार है। केवल प्रतिविज्ञान माने पहचान कराने की आवश्यकता है, भूली हुई बात को याद दिलाने की आवश्यकता है। तो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में आज भी देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके स्थापत्य को देखकर चकित रह जाते। इतने हजार वर्षों पहले कैसे विशाल प्रस्तर खंड वहां तक पहुंचाए गए होंगे, कैसे इतने बड़े बड़े मंडप बनाए गए होंगे जिसमें स्टील का प्रयोग नहीं है, कंक्रीट का प्रयोग नहीं है, किस तरह वो टिके हुए हैं। आज भी अशोक स्तंभ जो बना हुआ है, इतने हजार वर्षों से उसमें कहीं जंग नहीं लगा है, वो कौन सा कास्ट आयरन था, कैसे वो स्टील बनाया गया था। बड़े बड़े दुर्ग जो आपके देश में है, बड़े बड़े प्रासाद जो आपके देश में है,
ये सब हमारे गौरव के प्रतीक है। इस स्थापत्य को दबाया गया और इसके ऊपर कैथोलिक आर्ट और स्ट्रक्चर ये थोपा गया है। आज हम उसी से प्रभावित है, लेटेस्ट स्टाइल का अमेरिकन आर्किटेक्चर ले रहे हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चाहे संगीत ले लीजिए, नृत्य ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, आचार्य शरद को ये श्रेय प्राप्त है। पहले रंगमंच का विधान, नाट्य शास्त्र का निर्माण उन्होंने किया है। तो ये जितनी भी फाइन आर्ट्स हैं, 6 ललित कलाएं जो कही जाती है, उन सब में हम आगे नहीं रहे हैं, चिंतन के क्षेत्र में आगे नहीं रहे हैं। हाँ, हमने केवल धर्मोपलब्धि को ही जीवन का सर्वस्व नहीं माना। अध्यात्म विद्या सर्वोपरि विद्या की धर्म साधारण रूप में ग्राह्य रहा है, साध्य नहीं रहा है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में धन ही तुम्हें माता चरिता तुम्हें वो सर्वोत्तम देव देव वही जीवन का जो सर्वस्व हो गया है, उससे हमारा क्षरण हुआ। ये जितने भ्रष्टाचार है, देव घोटाले हैं, ये जितने अमानवीय क्रियाएं हैं, मनुष्य जो पाशवृत्ति की तरफ चला गया है, उसका मूल कारण यही है कि हमने केवल सुविधाओं को ही वर्णन किया है, केवल साधन को ही अपना साथ बन लिया है, और जो हमारा मूल ध्येय था, जीवन की सार्थकता का जो मूलाधार है, वो कहीं समाप्त हो गया है। ये सभी मानते हैं कि वेद संसार की प्राचीन तत्व ईशा के कितने हजार वर्ष पूर्व रचे गए हैं, इसका अभी तक कोई प्रामाणिक लेखा जोखा नहीं प्राप्त किया। लेकिन इतना सबने माना है कि वेद संसार की प्राचीनतम, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद माने जानना, जो उसको जानता है वही वेदज्ञ है, यानी जीवन के सर्वस्व को समझ लेता है। तो चारों वेदों की जो रचना की गई, उसमें ऋग्वेद में तो स्तुति थी, लोकोत्तर सत्ता थी। पहली मानव ने उसको एहसास किया कि कोई सत्ता है जो विश्व का संचालन कर रही है। आज विज्ञान भी उसके ऊपर नहीं उठ पाया। विज्ञान को भी कहीं न कहीं वो ब्लैक होल दिखाई देता है, गाढ़ पार्टिकल का सहारा लेना पड़ता है, उसके आगे की कलम शून्य है, अभी पता नहीं चल पाया है। महर्षियों ने उस ज्ञान को समझा। दूसरे एक विशेष प्रकार का जो विज्ञान बना और वेद को ही विज्ञान के रूप में जितने वर्णित किया गया, उसमें यजुर्वेद के भीतर कर्मकांड वितुर कर्मकांड शब्द से दुखी होने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कर्मकांड मतलब है जीवन की रचना प्रक्रिया। जो भी कार्य आप करते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी एक औपचारिकता होती है। और जैसे स्वागत करते हुए आपने पुष्पमाल दिया, सत्कार प्रकट किया, ये कर्मकांड है। जीवन की इस कर्मकांड में जीवन व्यवहार ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। उस पूरे वेद का उद्देश्य था। साम वेद में संगीत को संगीत के माध्यम से, संगीत तो नाद तत्व है और नाद तत्व को ब्रह्म तत्व कहा गया है, शब्द ही ब्रह्म है। तो उस रूप में पूरा वेद ऐसे आपके मन में तन्मयता और प्रगाढ़ आत्मीयता का भाव पैदा हो, इस रूप में रखा गया। और अथर्ववेद में जीवन की जितनी भौतिक आवश्यकता है, वेद भी है, शिक्षाशास्त्र भी है, समाजशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। कहने का तात्पर्य है कि उस समय के जीवन का सर्वांगीण विकास आपको वैदिक साहित्य प्राप्त होता है। फिर उपनिषद है, फिर स्मृतियां हैं, आरण्यक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सूत्र है, भाष्य है, और उसके बाद फिर महाकाव्य की परंपरा शुरू होती है। उसमें महाभारत के संबंध में कहा गया, यज्ञ भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है यदि महाभारत काल में तो कहीं नहीं है, और जो कहीं भी है वो महाभारत में है। जीवन का एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया, विश्व ज्ञानी एक कोश है वो, मानव चरित्र का उत्थान भी, पतन भी, उसके सारे। इसके पूर्व रामायण की रचना हो चुकी थी। रामायण में सब कुछ उदाहरण है, सब कुछ सप्लाई, सब आदर्श चरित्र है, यानी देवोपम मनुष्य है। जब धीरे धीरे द्वापर युग आता है और मनुष्य का चारित्र्य विघटन शुरू हो जाता है, मनुष्य सामने आता है, देवता के बजाय उसके विकल्प रूप में मानव आता है, तो मानव में सत और असत दोनों प्रकार की वृत्तियां, उन दोनों का सब ज्ञान उसी से निकला है गीता ज्ञान, जो हमारा धर्म ग्रंथ है और जो विश्व स्तर पर कर्म योग की शिक्षा देता है, ज्ञान योग की शिक्षा देता है, भक्ति योग की शिक्षा देता है। निकुल मिलाकर मानव को किस तरह वो मुक्त होना है, आत्म तत्व को कैसे पहचानना है, इसका ज्ञान देता है। तो ऐसे तमाम सारे ज्ञान विज्ञान में रहे हैं। नई शिक्षा में उनका अधिनिवेश किस तरह होता है। प्राय इन सबको लेकर धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है।
आप कहीं सनातन का नाम ले लें, हिंदू का नाम ले लें, किसी शास्त्र का नाम ले लें, किसी ऋषि का नाम लें, तो दलील हो जाए, अनुदान हो जाए, सेकुलरिज्म के खिलाफ चले जाए। उस भ्रांति को, उस ग्रंथ को तोड़ने की आवश्यकता है। सेकुलर का तात्पर्य अधार्मिक होना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है आपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करें, दूसरे की आस्था पर निर्भर करना। तो ऐसी उदार चेतना ये इन काव्यों के, इन ग्रंथों के माध्यम से मिली है। एक नई बात जो शिक्षा नीति में जोड़ी गई है वो ये है कि सारा ज्ञान अपनी अपनी मातृभाषा के नाम। अंग्रेजी बहुत समुन्नत भाषा है, लेकिन इस देश में खासतौर से गांव से आए हुए जो हमारे विद्यार्थी, उनकी संख्या 70-75% तक हो जाती। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, इनकी फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन, ये कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से दिए हुए व्याख्यान को पूरी तरह समझ नहीं पाते, हमारे सरल पे कहने नहीं पाते, परीक्षा जैसी पास कर लेते हैं। उनके पास प्राथमिक प्रतिभा की कमी नहीं है, कॉमन सेंस बहुत विकसित है, भाषा अवरोध बन जाती है, जिसके कारण प्रतियोगिता में स्थान नहीं पाते। वही ज्ञान अगर उनको अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से दे दिया जाए। आज की विडंबना ये है कि विद्यार्थी की 80% से ज्यादा क्षमता भाषा के स्तर पर खर्च हो जाती है। 20% से वो केवल पहले से निर्धारित ज्ञान की रटन शैली बनाता, किसी तरह रट लेता, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता, मौलिक चिंतन नहीं कर पाता। मौलिक चिंतन केवल और केवल अपनी मातृभाषा में होता है। भाषा वैज्ञानिकों को मत है कि आप मौलिक रूप से उसी में सोचते हैं जो भाषा में सपने देखते हैं। मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी में कितने लोग सपने देखते हैं। जो मौलिक भावनाएं हैं, जो फ्लैशेस है, वो अपनी भाषा में आते हैं। तो इसमें शिक्षकों को थोड़ा अतिरिक्त श्रम करना होगा। जो कुछ उन्होंने पढ़ रखा है अंग्रेजी पुस्तकों से, विदेशी पुस्तकों से, उसको अपनी भाषा में रूपांतरित करके छात्र वर्ग के हित में उसे संप्रेषित करना होगा, बेहतर ढंग से परोसना होगा, ताकि उसको ग्रहण कर सकें और शिक्षण द्वारा उसकी बढ़ोतरी कर सकें। ये उसकी शिक्षा है। इसलिए अनुवाद को बड़ा महत्व दिया है। अनुवाद एक तरह से विश्व ज्ञान का तलाश है। संसार में 15,000 से ज्यादा भाषा है, हर भाषा में मौलिक चिंतन करने वाले लोग भी हैं। सबका ज्ञान कोई एक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद समानांतर रूप से होता रहे तो उस ज्ञान के भागीदार, उससे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति सभी हो जाएंगे। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में ये संदेश दिया गया है कि आप व्यवहारिक शिक्षा को ज्यादा प्रश्रय दें। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब है स्वच्छ भारत कैसे हो सकता है, इस पर एक पाठ्यक्रम बनाइए। फिट इंडिया कैसे हो सकता है, आप अपने को कैसे फिट रखें, फिटनेस का एक पाठ्यक्रम बनाइए। मन से स्वस्थ रहे, तन से स्वस्थ रहे। बीइंग हैप्पी, इसी तरह का एक पाठ्यक्रम है। हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी भारत बहुत पीछे, आगे इसमें कैसे बढ़ा जा सकता है। उसी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे पैदा की जा सकती है। हम IQ तो देखते हैं, पर IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण EQ, हमारा इमोशनल अटैचमेंट कितना है अपनी संस्था के प्रति, अपने विषय के प्रति और अपने देश के प्रति, उसको देखने की आवश्यकता है। मूल्यवादी शिक्षा है। भक्ति को पूरा एक पाठ्यक्रम के रूप में रखा गया है, क्योंकि भक्ति आस्था की शक्ति है। और ऐसे ही आयुर्वेद है, न्यूट्रिशन है, साइंस एंड सोसाइटी है, प्राचीन परंपराओं का संज्ञान है। ये जो संवैधानिक अध्ययन है, ये जो नए विषय है वो हमको कई अर्थों में सच्चा नागरिक बनाएंगे, सच्चा मनुष्य बनाएंगे। और इन सबके समन्वित प्रयास से हम देश का राष्ट्रीय विकास कर सकेंगे। तो आवश्यकता ये है कि इस पाठ्यक्रम को केवल नौकरशाह ही लागू नहीं कर सकते, उसको सही अर्थों में सत्यनिष्ठा के साथ कार्यान्वित करने या उसको पूरी तरह से लगाने में अध्यापकों का योगदान होगा, विद्यार्थियों का योगदान होगा, उनका अभिभावकों का योगदान होगा, अर्थात प्रशासकों का भी, सत्ता का भी योगदान होगा। तो आवश्यकता ये है कि इस तरह समग्र भारतीय विकास का मानचित्र बनाना, एक रोडमैप हमें तैयार करना पड़ेगा। विमर्शों को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। गांव, किसानों, मजदूरों, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दिव्यांग वर्ग कहे जाते हैं, इन सबको उसके साथ जोड़ना होगा। आदिवासियों को जोड़ना होगा और शिक्षा को महत्व देना होगा और आर्थिक परंपरा से जोड़ करके इस पूरे ज्ञान विज्ञान का आधुनिकीकरण, नवीकरण करते हुए एक नई शैक्षिक क्रांति इस देश में लानी होगी। यही इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी सार्थकता है। आज जो दिशा में पहल की है
मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिनों की समस्या है कि नए पशु भरेंगे, उनके व्यवहारिक समाधान दिया देंगे। चूंकि समय अभाव है इसलिए बात से समझ चाहूँगा। Small word to convey our heartfelt gratitude. We were blessed to be here today receiving your blessings. Now I will be inviting our special guest, Shri Santosh Singh. Now I will be inviting our next special guest, Professor Dr. C.M. Singh, Director Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow. He is a name to reckon with in the field of medicine. His areas of interest include infectious diseases, epidemiology, evaluation of health programs and policies, health system researches, and many more. We definitely look forward to a curious discourse. You are most welcome, sir. अभी मंच पे हमारे बीच मुख्य अतिथि को हमने सुना, अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। और हमारे पहले स्पीकर प्रोफेसर एस.पी. दीक्षित साहब, हम लोग बात कर रहे थे, संतोष सर से बात कर रहे थे, उनको भी कहीं जल्दी जाना, मुझे भी जल्दी जाना है। तो हम यही बात कर रहे थे कि सर ने हमारा काम तो खुद ही कर दिया, उन्होंने अब कुछ बोलने के लिए छोड़ा नहीं। मंच पे उपस्थित श्री संतोष जी, MLC, ऑनरेबल MLC, प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जी, प्रो वाइस चांसलर, मैडम प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मिस्टर हृदय शुक्ला, एंड कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम ऐश्वर्या सिंह, और हमारे सामने उपस्थित डिफरेंट कॉलेजेस के वरिष्ठ अध्यापकगण, छात्र और मीडिया के लोग, आप सभी को हमारा बहुत बहुत बड़ा नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आज का टॉपिक है बहुत ही पर्टिनेंट है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी क्या जरूरत है उसके बारे में बहुत डिटेल सर ने बताया। मैं अगर मेडिकल के बारे में बताऊँ, मेडिकल सब्जेक्ट की स्टडी के बारे में अगर बताऊँ, तो जहाँ तक नॉलेज की बात है, हम लोग सब जानते हैं कि हम विश्वगुरु रहे हैं और जो मेडिकल साइंस की शुरुआत भारतवर्ष से ही हुई, आयुर्वेद की शुरुआत भारतवर्ष से हुई और ब्रह्मा जी से हम लोग जोड़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रजापति जी को दिया, फिर प्रजापति जी के बाद विभिन्न चरणों होते हुए इंद्र भगवान से, फिर अगस्त मुनि से, फिर इस रूप में आया और अल्टीमेटली हमारी जो 2 सभ्यताएं डेवलप हुई आयुर्वेद में, जिसको हम बोलते हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो चरक संहिता जो थी उसमें हम मेडिसिन की बात करते थे, मतलब दवाओं की बात करते थे, चिकित्सा की बात करते थे, और सुश्रुत संहिता में हम सर्जरी की बात करते थे। तो बेसिकली हमारा देश विश्वगुरु था और जैसा कि मेरे पहले सर ने बताया कि जो गुलामी के करीब 1000 वर्ष हम रहे उसमें हमारा अध्यापन और सारी चीजें रुक गई और उसके बाद से फिर एलोपैथी विद्या को, जिसपे शोध ऑलरेडी पश्चिम के देशों में जारी रहा, हमने उसको अपना लिया और जो हमारी अपनी विधा कहीं न कहीं पीछे छूटती थी। वैसे मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ और तो लोग अपनी विधा की तारीफ करते हैं, बट आज बात सही है कि एलोपैथी काफी विकसित विधा है और वो क्यों विकसित है, क्योंकि उस पर लगातार रिसर्च और शोध होते हैं और इस विधा आगे बढ़ती है। आज के दिन में हम बात करते हैं इविडेंस बेस्ड मेडिसिन की। मतलब ये है कि अगर हम कोई दवा आपको लिख रहे हैं तो उसके पीछे सफिशिएंट साक्ष्य उपलब्ध हो कि ये दवा आपके लिए बेनिफिशियल है और सबसे कम नुकसान करती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हम उस रिसर्च को छोड़ दिए या छोड़ना पड़ा। गुलामी के समय में हमें रिसर्च करने का कोई न परिस्थिति आती थी, न उस समय हमारे पास रिसोर्सेज थे और रिसर्च पीछे छूट गया, जिसकी वजह से आज होम्योपैथ, यूनानी सिद्ध आज जिस जगह पे है उसका कारण बनी है। भारत सरकार, जैसा कि आप जानते हैं और हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि भारत सरकार, प्रेजेंट की जो सरकार है, वो इन विधाओं को बढ़ाने के लिए जो भी पॉसिबल स्टेप्स हैं वो उठा रही है। अब उसके लिए हम लोग अपना योगदान कैसे दें, उसमें हम रिसर्च को कैसे बढ़ाएं, हम उन पद्धतियों को एविडेंस बेस्ड कैसे बनाएं,
इसका दायित्व हम सभी लोगों पे जाता है। और मैं सच बोलता हूँ कि अगर सच में हम उस लेवल का रिसर्च किए, वैसे एविडेंस जनरेट किए, तो हम अगेन विश्व गुरु बन सकते हैं हेल्थ के एरिया में भी। तो ये सारी चीजें हैं। और जो पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी की बात है, बहुत सब कुछ बताया गया कि अब इस एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ हमारा कॉग्निटिव फैक्टर पे हमारा रोल नहीं है, हम साइकोमोटर पे भी काम कर रहे हैं। और हम इसलिए आजकल सॉफ्ट स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। हम डॉक्टर्स को भी, मरीज को हम पहले भी देखते थे और जो इम्पैथी चाहिए वो कहीं न कहीं कम थी। तो अभी जो एजेंसी की जो गाइडलाइन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस सॉफ्ट स्किल पे है कि आप डॉक्टर हो, बट एक पेशेंट एक अटेंडेंट जो सफरिंग है उसको आप कैसे बात, इम्पैथी का मतलब आप जानते हो कि दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखना। आप उसको अपनी जगह पे रखो कि बेचारा परेशान है, उसका माँ बहन बेटा भाई कोई मरने की कगार पे है, वो आपके पास आया है, तो आपको उससे कैसे बात करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, जो काफी लैकिंग था। लैकिंग के कारण है कि एक मरीज, हम यूएस की बात करते हैं, 5 मरीज देखता है एक डॉक्टर, तो ऑब्वियसली वो आधा पौना घंटा उसके पास टाइम है जो बात करें। और हम जिस परिवेश में काम करते हैं, इंसान डॉक्टर भी है और वो 150 से 200 मरीज देखता है, वो 8-9 घंटे में, तो एक मरीज के लिए 1 मिनट या 2 मिनट लगता है। तो अगर सिर्फ चिकित्सा की बात कर ले वही काफी होता है, और बाकी बातें करना, इम्पैथी करना, उसकी प्रॉब्लम सुनना, उसको समझाना, वो उस बीच में छूट जाता है, वो भी उसकी मजबूरी होती है। तो उसके लिए डिफरेंट लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है, डॉक्टर्स के लेवल प्रयास करने की जरूरत है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ाने की जरूरत है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मेरा जो अपना एक्सपर्टाइज है दैट इज पब्लिक हेल्थ, मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर पे हमारे पब्लिक का विश्वास नहीं बढ़ेगा, सेंटर्स हैं काम कर रहे हैं बट उस पर पब्लिक का विश्वास नहीं है। जो थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएससी पे या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं जाना चाहता, वो सीधे एचपीजीआई लोहिया या प्राइवेट के कॉर्पोरेट अस्पताल में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? सिंपल सी बात है कि उसको उस इलाज पे भरोसा नहीं है, उस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। और जब चूंकि हमारा देश इतना ज्यादा है, 75% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, रूरल एरिया के जो अस्पताल है वो पीएचसी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। जब तक हमारे पब्लिक का भरोसा नहीं होगा, वो सारी पॉपुलेशन ये जो 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी तरफ दौड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटे पड़ेंगे। और जब छोटे पड़ेंगे तो आगे क्वालिटी की भी दिक्कत होगी, क्योंकि 1 मिनट में आपको 1 मरीज देखना है, 1.5 मिनट में 1 मरीज देखना है, फिर क्वालिटी की बात करना बेमानी हो जाती है। तो इन अस्पतालों का जो बनने का ध्येय है कि जिनका इलाज उन स्तरों पे न हो पाया, सिर्फ वही मरीज इन अस्पतालों पे आए, जिससे कि हम बेहतर और गुणवत्तापूर्वक इलाज दे पाए, वो उसका उद्देश्य पूरा होगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ अगेन मैं भी थोड़ा ज्यादा बोलने लगा था, तो अपनी बात को यही विराम करता हूँ और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल। Thank you on behalf of Navdeep Tanji. Member Legislative Council, you are cordially invited to share your thoughts with us. हमारे चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता और डॉक्टर सीएम सिंह साहब, तीनों को आपने सुना और इतने मूर्धन्य विद्वानों पे बोलने के बाद मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति के लिए कुछ बहुत ज्यादा बचता नहीं है। फिर भी प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जी जो प्रो वाइस चांसलर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी जो हमारी बहन भी है, डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह जी जो संयोजिका हैं, हमारे हेमंत बाबू कहीं डालने निकल गए, मनोज आगरदानी, डॉक्टर मनोज पांडे जी लुआक्टा के परमानेंट रेसिडेंट, क्या डॉक्टर इंद्रेश शुक्ला जी, विभिन्न हमारी प्रोफेसर, शिक्षिकाएं, कुछ शिक्षक भी, हमारी प्रिय छात्राएं और हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के विद्यार्थी। आज हम भारतीय ज्ञान पद्धति और नई शिक्षा पद्धति जो आई है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 में, उस पर बोलने के लिए खड़े हुए। प्रोफेसर एसपी दीक्षित ने कुछ हम लोगों के लिए बहुत छोड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध रही है।
तब विश्वविद्यालयों की हमारे यहाँ कल्पना थी जब कहीं दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होते। तक्षशिला, नालंदा, जिनको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जला डाला, नष्ट कर डाला। आप श्री राम की बात सुनते हैं, श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, या पांडवों की बात सुनते हैं, या ऐसे सभी कितने गुरुकुल थे, कितने आश्रम थे, कैसे ऋषि थे, जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी और युद्ध में भी निपुण बनाया जाता था, और कैसे वो जीवन में आगे बढ़े। साहित्य, नृत्य, कला, सब चीजों की शिक्षा होती है। जब कृष्ण को आप पढ़ते हैं तो कृष्ण के लिए भी विशेष प्रकार के शिक्षक थे। नृत्य के शिक्षक अलग थे, कला के शिक्षक अलग थे, ज्ञान के शिक्षक अलग थे, युद्ध के शिक्षक अलग। इतनी धनी परंपरा भारतीय परंपरा थी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस भारत की, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको नष्ट और भ्रष्ट करने का काम किया। उन्होंने केवल हमारे मंदिरों को ही नहीं तोड़ा, हमारी आस्था पर ही हमला नहीं किया, हमारी शिक्षा पद्धति का भी विनाश किया। दुर्भाग्य से जब भारत इन आक्रमणकारियों से स्वतंत्र होने की तरफ बढ़ चला था, मुगलिया सल्तनत नाम मात्र की रह गई थी दिल्ली में। मराठों ने, राजस्थान से राजपूत राजाओं ने, छत्रसाल बुंदेला ने, सिख साम्राज्य ने एक लंबा साम्राज्य हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया। उसी समय अंग्रेजों से जो दो युद्ध हुए, उसकी पराजय ने फिर हमें गुलामी के सिकंजे में ढकेलने का था। अगर भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट नहीं किया गया, इनके उद्योगों को नष्ट नहीं किया गया, तो भारत में हमारा रहना ज्यादा दिन तक संभव नहीं। और फिर मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई। उस शिक्षा पद्धति के लागू होने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दुर्भाग्य से कम्युनिस्टों के बारे में मैं बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी अपनी एक सोच है और उस सोच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बढ़ है। जो उम्मीद थी वो कहीं पूरी हुई नहीं और हमारी शिक्षा पद्धति का नुकसान ही हुआ। आज आप देखिए जेएनयू, अगर किसी संस्थान में सबसे ज्यादा भारत तोड़क नारे लगते हैं तो कौन सा संस्थान? जेएनयू। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू से आवाज आती। कहते हैं जेएनयू बहुत विद्वान पैदा करता है, लेकिन जेएनयू एक वामपंथियों का अड्डा भी बनकर बन गया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही थी। बाद में अल्पकाल के लिए 6 वर्ष के लिए अटल जी की सरकार आई। पूरी एनसीईआरटी में जिसमें अकबर महान है ये पढ़ाया जाता था। अरे साहब, अकबर महान है तो हमारे राणा प्रताप क्या थे? अकबर ही महान है जिसने मीना बाजार लगवाई। प्रत्यक्ष में क्या था, अप्रत्यक्ष में क्या था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो राणा प्रताप क्या है? काफी एनसीईआरटी की बुक में उसी समय जगमोहन राजपूत जी जब चेयरमैन बने यूजीसी के, चेंजेस शुरू हुए, लेकिन हमारी वो सरकार नहीं थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर्णिम काल शुरू हुआ। और वही स्वर्णिम काल के अध्ययन में 2020 में अध्ययन के साथ साथ नई शिक्षा नीति लाने की बात शुरू हुई। और भाई तो भारत से अभी तेजी से ठीक बात करते हैं प्रोफेसर स्मृति दीक्षित साहब कि अभी लागू नहीं हो पाई है, लेकिन लागू होगी और लागू हो रही है। लेकिन 1000 साल की जो गुलामी थी भारत की और उसके बाद जो स्वतंत्रता का भी 70 साल का पीरियड था, वो भी कहीं मानसिक गुलामी के दौर में ही था। यहां तक कि हमारे नौसेना के जो थे उसका झंडा ब्रिटिश एम्पायर के जमाने का ही लहराता था, उसको भी बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जाऊंगा तो आप उसको समझ रहे हैं। 1000 साल बाद भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान शुरू हुआ है। बहुत से लोग इसमें मुझे लगता है सहमत भी होंगे। हिंदुस्तान की धमक जो अपने तरीके से हिंदुस्तान चला है तो बढ़ी है। सामरिक क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो,
गरीब कल्याण का काम हो, हमारी सरकार ने अद्भुत काम किया है। शिक्षा क्षेत्र में भी कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, IIT, रुड़की, IIM, बड़े बड़े संस्थान, एम्स, ये तो बढ़े ही। मेडिकल की सीटें अभी डॉक्टर साहब कह रही थी, लेकिन केवल 9 वर्ष के कार्यकाल में मेडिकल की सीटें 2.5 गुना हुई है, और मास्टर डिग्री में भी। मेरी आप सबको बहुत नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा विषय मेरा भीतर हो जाएगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो मेरी बहुत डॉक्टर मंजिला उपाध्याय जी के मैं विवाह में भी मुझे जाने का अवसर मिला था, और उसके बाद यहाँ भी आया। तब इनके उसमें मैं खान पान का जो सामान था, डॉक्टर मनोज जी को याद होगा, सब संस्कृत में लिखा था ना। तो ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। कभी तो आपको क्षितिज छूना है और आसमान देखना है, और आप सबके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। यहाँ की छात्राओं के लिए भी शुभकामनाएं हैं, और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जो 2 दिन का इंटरनेशनल ये सेमिनार है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, इसमें कुछ सीखें, कुछ बोलें, कुछ समझें और आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद। Moving at a fast pace, it's my pleasure to invite yet another special guest for the inaugural Professor Arvind Awasthi, Pro Vice Chancellor, University of Lucknow. He is a local academician with over 38 years of teaching experience, a number of books and publications to his credit, a well-known figure in academia. सबसे पहले धन्यवाद देंगे मंजुला जी को, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। हालांकि कार्ड डीसी साहब को देने गई थी, लेकिन शायद उन्होंने उनसे कहा होगा कि डीसी साहब को बुलाइए। इस साल का भी मैसेज आया कि आप चले जाइएगा। शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है। मनोज जी बैठे हैं, ये जानते हैं, कभी किसी कॉलेज की कोई समस्या रहती है, कभी किसी कॉलेज की। लेकिन इसके अलावा जो डीन आर्ट्स है उसमें 27 विभाग है और 5 इंस्टीट्यूट है। उसका काम इतना ज्यादा है, और खासकर जब से मोदी सरकार आई है तब से फेलोशिप बहुत बच्चों को और कुछ बच्चों की फेलोशिप रुकी थी पिछले 3-4 साल से। तो हमने किसी तरह से कहा कि इसको दे दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया कि 8 फरवरी तक ये सब अपलोड कर, और सब बच्चों को मिल गई। बड़े खुश हैं सर। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, कम से कम बच्चों के लिए। और आज फेलोशिप का अमाउंट SRF का लगभग 50,000, 6,000 हमारा हुआ, और CRF का फेलोशिप का अमाउंट 37,000 है, प्लस उस पर कंटिजेंसी है 5,000। तो एक अच्छी खासी नौकरी के बराबर है, और कोई बच्चा उसको छोड़ना नहीं चाहता है पिताजी। ये सब अपनी बात है। और इसके अलावा जो विषय आज रखा है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एक चीज है जिसमें बड़ा रिच है, क्योंकि मैंने बताया 27 विभाग और कई विभागों में मैं डिफेक्टो हेड हूँ, क्योंकि वहां पे कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, तो 4 दिन के बाद चला जाता। तो एक ऐसा है जिसे ज्योतिर्विज्ञान हम लोग सब कहते हैं। आपकी शादी हो, बच्चे की शादी हो, कहीं हो, आप जाएंगे अपना कुंजी बनवाने। और डिफेक्टो हेड होने की वजह से एक बार तक हाई कोर्ट ने बुला लिया हम लोग। लड़के लड़की का मसला था, बात कुछ बड़ी होगी, बाद में लड़का मुकर गया, शादी नहीं करेंगे, और कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाँ, अल्लाह में छपा था यार। तो हमको कहा गया कि आप हेड है वहां के ज्योतिर्विज्ञान के, आप पत्री देख के बताइए कि मैच करती है कि नहीं। हम हाथ जोड़ हम इकोनॉमिक्स हेडशिप कर चुके हैं, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं काम आपका कर दूंगा। तो 3 एक्सपर्ट को बुला के जन्म पत्री तैयार की, लेकिन बाई चांस वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया और रोक लगा दी। तो कम से कम वो रिपोर्ट सील्ड कवर में भरी रखी है और हमको देनी नहीं पड़ी। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इस बात पे मैं आ रहा था कि
आपको अगर ज्ञान अर्जित करना है तो आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, तब आपको सही ज्ञान अर्जित होगा और आप अच्छी ज्योतिष विद्या कर सकते हैं। और आज जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उनकी कमाई किसी भी डॉक्टर से ज्यादा है। फिर तो मैं जानता हूँ आपको 11:30 बजे नाम लिखना है और बस 25 नाम वो लिखवाते हैं और नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और फिर ऑनलाइन देश विदेश सब जगह और तमाम लाइसेंसदार उठ जाते हैं। हम जो इन लाइन है वो भी जाते रहते, भाई हमारा आगे का देखा जाए। ज्योतिष विज्ञान जब मैं हेड बना तो मुझे उस सब्जेक्ट का महत्व पता चला और उसमें लाइन लगी एडमिशन। पंजाब से मेरे पास फोन आते थे, मेरा एडमिशन उसमें कराइए। मैंने कहा कि भाई आप फॉर्म भर दीजिए, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन अगर डेवलप हुआ है तो ये ज्योतिर्विज्ञान में डेवलप हुआ सबसे ज्यादा। जैसे अभी डॉक्टर साहब थे वो कह रहे थे कि चरक संहिता और इसमें, लेकिन हम लोग मेडिसिन को डेवलप नहीं कर पाए, आयुर्वेद को डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन वो पीछे छूट गए। बाकी रही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की और उसके बाद जो तमाम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आए, क्योंकि मैं बहुत करीब से इससे जुड़ा रहा और उसका कारण क्या था कि 2021 में जब ये पॉलिसी आई तो कोरोना काल था और स्थिति बहुत खराब थी, तो मुझे अपने ही डेस्कटॉप से घर पे काम करना पड़ा। सारी पॉलिसी का फ्रेमवर्क मैंने तैयार किया और फिर तमाम, क्योंकि उस पे विभागों से और तमाम अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये कोर्स बना जो आज आप लोग चला रहे हैं। और मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं कि सर इसमें क्या करना और क्या नहीं करना। 4 सेमेस्टर तक ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो 2 साल हुए, उसमें 2 पेपर पहले मेजर के, 2 पेपर दूसरे के और 1 पेपर माइनर का है और 1 को करिकुलर है और 1 बार 1 वोकेशनल है। तो 24 क्रेडिट का ये सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन जब आप 5वें सेमेस्टर में बच्चा जाएगा वहां उसको मेजर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसका मेजर 1 क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। मेजर 1 आपको भी फॉर्म भरवाना पड़ेगा, गूगल फॉर्म ऑटो जनरेटेड है। और उसके बाद जब 6 सेम में जाएंगे तो 3 पेपर हैं, मेजर 1 में 2 पेपर मेजर 2 में हैं और 1 आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है 4 क्रेडिट का, तो टोटल 24 क्रेडिट इस तरह से बनते हैं। और 7th सेमेस्टर में आपके 5 पेपर हैं और 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, तो टोटल 6 पेपर हुए, 6 24। ये 7th सेमेस्टर का हिसाब किताब है। और 8th में पूरा 24 नंबर जो है वो मेजर प्रोजेक्ट पर है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं था, लेकिन कई बार मजबूरियां रहती हैं कि आपको असहमत होते हुए भी सहमति दिखानी पड़ेगी। सहमत इसलिए नहीं था कि अगर आप बच्चे में छोड़ देंगे वो हो सकता है स्कूल आना बंद कर आप पूरा मेजर। लेकिन जब करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में आया तो उन्होंने कहा, इसमें लिखा, जो बात मैंने उस समय भी बताई, कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ 3 पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि 24 क्रेडिट बहुत ज्यादा है डिसर्टेशन के। ये बात पुरानी हो गई जरा। अब आपको इस साल से, इस सेशन से ये नया फ्रेमवर्क एक यूजीसी ने भी बनाया है, करिकुलम फ्रेमवर्क, और हम लोग ने भी अडॉप्ट कर लिया है। और पता नहीं आपके पास आया कि नहीं आया अभी। इसमें थोड़ा चेंज है। पहला चेंज तो ये है कि 24 की जगह 20 क्रेडिट का ये हो गया टोटल, यानी एक सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट अर्न करने हैं। और बाकी जो माइनर है वो अब 4 की जगह 2 क्रेडिट का होगा माइनर, और जो 2 करिकुलर है या वोकेशनल है वो 2 क्रेडिट का। तो 4-4 8 और 4-4 8 16 और 2 क्रेडिट के लिए 20 क्रेडिट का एक कोर्स बनेगा इस तरह से। और वही बात कि 4 सेमेस्टर तक ये सिस्टम इसी तरह चलेगा, इसमें मेजर चेंज नहीं है। लेकिन 5वें सेमेस्टर में आपको केवल 2 पेपर पढ़ाने हैं मेजर 1 में।
और 2 पेपर आपको मेजर 2 में पढ़ाने हैं और मेजर वहाँ पे आपको बच्चा बताएगा। हालांकि मेजर 1 2 की जगह हम लोग ने मेजर ए और बी कर दिया, तो बच्चे को बताना होगा कि इस सेमेस्टर में मेजर ए क्या है, और मेजर ए में 2 पेपर पढ़ेगा और मेजर बी में भी 2 पेपर पढ़ेगा। और साथ में इंटर्नशिप एक होगा 4 क्रेडिट का, तो टोटल 20 क्रेडिट यहाँ भी है। सातवें सेमेस्टर में जो है वो बच्चा 5 पेपर पढ़ेगा 7 सेमेस्टर में, और 8 सेमेस्टर में बच्चा 2 पेपर है और 1 रिसर्च प्रोजेक्ट है 12 और 8 भी। तो ये एक चीज है जो इस साल से आपको इंट्रोड्यूस करना है। नहीं वो नहीं, जो बच्चा अब एडमिशन नया लेगा उस पर ये लागू होगा, तो नया एडमिशन लेगा। हाँ, जो बच्चा अभी 5th में या 6th में है वो वही पढ़ेगा। इसके अलावा क्योंकि अब यूजी जब 4 ईयर का है तो पीजी 1 ईयर का हो गया है, तो 1 ईयर का भी फ्रेमवर्क हम लोगों ने तैयार कर लिया है और उसका भी 20 क्रेडिट के 2 सेमेस्टर होंगे 1 ईयर में, और उसमें 3 कंपल्सरी हैं और 2 इलेक्टिव कोर्सेज हैं। इसके अलावा एक चीज और बताते हैं आपको कि जो अब नया फ्रेमवर्क आया उसमें गौरव को मैंडेटरी कर दिया। चाहे बच्चा 1 साल के बाद निकलना चाहे या 2 साल के बाद राष्ट्रीय गौरव उसे पास करना जरूरी है नए फ्रेमवर्क में, पुराने में नहीं, नए वाले। और पीजी में जो है आपको हमने बताया कि 20 क्रेडिट का है, उसमें 3 कंपल्सरी और 2 इलेक्टिव पेपर्स हैं, तो टोटल 20 क्रेडिट इस तरह से बन जाएंगे। और पीएचडी कोर्स भी चेंज थोड़ा सा किया है, अब 2 पेपर की जगह 3 पेपर उसमें कर दिए गए हैं, और 5-5 क्रेडिट के 2 पेपर जो पहले चल रहे थे, एक पेपर रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का, वो 2 क्रेडिट का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो कुल मिला के पीएचडी में भी 5-5 10 और 2 12, तो ये 12 क्रेडिट का कोर्स बनाया है। क्योंकि 2 चीजें हैं, जैसे प्रोफेसर दीक्षित जी जब हम पढ़ते थे तब वो यहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत सी बातें एनईपी की बताई, लेकिन कई बार क्या है कि एनईपी में बहुत सी चीजें लिखी होती, जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं। तो तमाम डिफिकल्टीज को ओवरकम किया है, और जो यूजीसी ने करिकुलम फ्रेमवर्क अपना करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया, उसको हमने दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ने ये चेंजेस किए हैं। तो ये चेंजेस आप लोग नोट कर लें और बच्चों को उसी हिसाब से गाइड करें। इसलिए मैंने दिया, आप कहेंगे तो वैसे तो ऑफिशियल कॉपी आपके पास आएगी, इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो मेजर चेंज है, एनईपी के आने से मेजर चेंज है, और वो चेंज लगभग अब फाइनल होता जा रहा है, धीरे धीरे करके इट इज कमिंग टू द फाइनल स्टेज। और मोस्ट लाइकली ये जो नया फ्रेमवर्क हम लोग का बना है ये फाइनल स्टेज फ्रेमवर्क है, और बाकी सिलेबस जो है वो डिपार्टमेंट कंसर्न बीओएस वो सब पास करेंगे, और वो आपके पास फिर आएगा बाद में। और कुछ जानकारी आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करने का एक रीजन ये भी था कि मंजुला जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मना करना कई बार बहुत मुश्किल होगा, स्टूडेंट को मना करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली हम लोग अपने यहाँ तमाम प्रोग्राम होते हैं, हम लोग बहुत कम जाते हैं क्योंकि टाइम लॉस बहुत है, हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मना नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि एनईपी से रिलेटेड बहुत से टीचर जानना भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कर क्या रही है। इसके अलावा अब हर बच्चे को अपना एक डिजी लॉकर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एवरी स्टूडेंट हैव टू क्रिएट अ डिजी लॉकर अकाउंट। यूनिवर्सिटी ने बना लिया, और 2017 से सारी मार्कशीट उस डिजी लॉकर पे है। तो जब बच्चा अपना डिजी लॉकर बनाएगा और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट बनाएगा, तो उसकी मार्कशीट 2017 से वहाँ मार्कशीट उसको दिखाई देगी, और सारी मार्कशीट ऑटो अपलोडेड है। लेकिन अकाउंट हर बच्चे को अपना बनाना पड़ेगा, डिजी लॉकर से शुरू करना पड़ेगा, और फिर अपार्ट, और फिर एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये स्टूडेंट के लिए है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। थैंक यू। We have a young dynamic guest joining on dais in our international seminar. Mr. Sipu Giri, he is Special Secretary, UP Higher Education Department. I would like the organizing committee to come forward
behalf of Navayukt Kanya Mahavidyalaya. I would request Principal Ma'am to hand in, we welcome you, sir, on behalf of Navayukt. के अध्यक्ष सबके परिचित चेहरे अभिवादन आप हमारे यहाँ अभिवादन बनता है मैडम बुला ली for the formal vote of thanks by IQAC coordinator Professor Sangeeta Kodwar. On behalf of Department of Education and IQAC of Navayukt Kanya Mahavidyalaya, I would like to extend my thanks first of all to our chief guest who has left because of his busy schedule, Shri Pawan Singh Chauhan ji, LLC, and we are deeply grateful to him for his presence today. And next, I extend my heartfelt thanks and gratitude to our special guest, Shri Santosh Singh ji, who is again a member of Legislative Council. And sir, we are truly indebted to you for accepting our invitation and honoring us with your gracious presence. He is Pro Vice Chancellor and Dean of Arts. And sir, we are very grateful to you for your presence today. And with you, we can say that it is our own university. So we have some right over you to, not only welcome you, but thank you for your gracious presence. Next, we have two guests who have already left, but one was Professor C.N. Singh, who was Director, Medical Institute of Sciences, Dr. Ram Manohar Lohia University. I'm deeply indebted to him for his gracious presence today, and we are extremely grateful to him. Next, we had Professor S.P. Dikshit as a keynote speaker, and he is truly an epitome of learning, and we have learned a lot from his wisdom and his insightful lecture today. So we again thank him for being here. Now we have some very esteemed guests and dignitaries who are present in the auditorium today, and they are Dr. Manoj Pandey, Professor Shilpi Verma, Professor Ranjana Krishna, Professor Rekha Gupta, Dr. Subhash Mishra, Dr. Manju Trivedi, and Shri Shikoti. Okay. So we welcome you all and we thank you very much for being a part of this event. We are truly grateful to all of you. And then, last but not the least, we thank all the participants and faculty members who are here in various capacities from our college and other colleges, and also the media who is covering this event, and again our immense gratitude to each and every one of you for being a part of this event. Thank you so much. हम सभी अब राष्ट्रगान के लिए खड़े भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे भारत माता की जय।